Good evening, viewers. Once again, we are back at the behest of Little Wings Holistic Childhood Center. And this afternoon, when we talk about learning approach at Little Wings Holistic Childhood Center and its focus on the overall development of children, more than that, it has become very important today because we have got a very special personality on platform today. But before we start any discussion or we start sharing the views and opinions of today's personality, I would rather throw a question to you all. Choosing a school for your child that is the right fit is a major Herculean question. How would you decide? What would you decide about your child? This pandemic that's going to end up very soon. Once again, there will be a challenge for you people. Where to send your child? How to make your child learn all that are required for the growth, all that are required to be converted into a good human being. And for that only we have got a very special guest on the platform today, although rather I should say that it's not the term guest that should be used here, because there is a brainchild, Little Wings Holistic Childhood Center, which has come out of all the efforts that she has made. Introduction of Mrs. Usha Agrawal, I think it doesn't need any introduction because she has got a magnanimous personality. But for our information, it's very important to introduce Mrs. Usha Agrawal on this platform. To begin with, Mrs. Usha Agrawal is a philanthropist, a social reformer, a crusader in bringing reforms in society. She has been associated with a large number of organizations in Gujarat, and she has been a founder trustee, the director of Sri Shakti Seva Kendra Ambaji. A little more introduction of the Sri Shakti Seva Kendra is required to be given here because a resolution to eradicate the evil practice of begging from the religious places. This is one of the clarion call that Mrs. Usha Agrawal has given. भीखे नहीं पण भणवा जी, हर बच्चों को अडॉप्ट करके और उन्हें एजुकेशन की ओर प्रेरित करना, ये इनका सोशल वर्क है। फाउंडर ऑफ लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर के तौर पर मिसेस उषा अग्रवाल ने बहुत ही बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंटल लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर की स्थापना की है। हम इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। She has been associated with the management of Global Mission International School for the last 18 years, and her experiences in the world of education are par excellence. She has also been an advisor for the expansion of EMRS. EMRS is one of the pet project of the government, Eklavya Model Residential School for Education of Adivasi children. And fortunately, in near future, we would also come to know that she has been working for Adivasi belt to a large extent. Madam Usha Agrawal, you're welcome here on this platform. Thank you so much. Thank you Yes, so much. जी मैम। आज की जो शुरुआत होगी बातचीत की मैडम उषा अग्रवाल से, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक ऐसी कल्पना करना जिसमें बच्चों को होलिस्टिकली ग्रो करना और एक ऐसा विचार जो उत्पन्न होता है जिससे बच्चे बड़े होकर के एक वैल्यूबल सिटीजन में कन्वर्ट होते हैं, ये विचार बहुत कम ही एजुकेशनिस्ट के दिमाग में आता है। लेकिन उषा अग्रवाल मैडम के अंदर यह विचार आया। तो मैम, मैं आपसे एक पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या बात थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप एक ऐसे होलिस्टिक चाइल्ड सेंटर की स्थापना करें जहाँ बच्चों की नर्चरिंग हो सके, ग्रूमिंग हो सके। इस प्रेरणा का स्रोत क्या था और ये विचार आपके मन में आया कैसे? जी सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया अपने विचार और अपने अनुभव शेयर करने के लिए। साथ ही साथ मैं अपने सभी पेरेंट्स और फ्रेंड्स और जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो अपना समय निकाल कर हमसे जुड़ रहे हैं। जी। आपके जो सवाल है सर कि ये विचार क्यों आया, तो मैं आपको थोड़ा सा समय के लिए पीछे लेके जाना चाहूँगी। 2007 मैं GMS स्कूल में अर्ली चाइल्डहुड, दैट मीन्स कि 1 to 7 ईयर्स के बच्चों के साथ जुड़ी, और उनके साथ जुड़ने के साथ मैंने
महसूस किया कि अर्ली चाइल्डहुड जो एक सब्जेक्ट है और जो एक बचपन का हिस्सा है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह के वैक्यूम्स हैं, क्या और ज़रूरतें हैं, क्या उन बच्चों के अपने हिडन इस तरह के वैक्यूम्स हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। और उनके साथ रहते रहते करीबन 5-6 साल में हम लोगों ने इसी पे एक रिसर्च, 2 या 3 हमारे एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ जुड़कर हमने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया और हमने कंपेयर किया कि 20 से 25 साल पहले जब हमारा एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता था जिसमें जॉइंट फैमिली होती थी, दादा दादी नाना नानी होते थे, बच्चों के साथ खुद 5-7-10 बच्चे होते थे जिनके साथ वो बहुत कुछ वहाँ पर सीखते थे, समझते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आते आते न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुआ। पेरेंट्स का वर्किंग होना एक बहुत बड़ा ज़रूरत भी बन गई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से एजुकेशन हम एजुकेटेड होते चले गए उस तरह से हमारे लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़बरदस्त चेंज आया। लेकिन उन चेंज के साथ साथ ये जो अर्ली चाइल्डहुड है वो कहीं ना कहीं एक निगलेक्ट होने लगा। और प्री स्कूल का जो एक कंसेप्ट था, जब 20-25 साल पहले मदर को अपने कंफर्ट में जुड़ के और लगता था कि 2-3 घंटे के लिए बच्चा कहीं जा रहा है और खेलेगा और तब तक मैं कुछ रेस्ट कर लूँगी, और या फिर लगता था कि कुछ वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, कलर्स हैं, नंबर्स हैं, इनका एक बेसिक नॉलेज बच्चे को मिल जाएगा। ये 2-3 सोच से जुड़ा हुआ होता था प्री स्कूल का कंसेप्ट। लेकिन जब हमने इस पे पूरा रिसर्च किया तो हमने देखा कि 1 to 7 ईयर्स उनके जीवन का सबसे प्रीशियस टाइम है और जहाँ पर हमें सोसाइटी के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस अप्रोच को हॉलिस्टिक अप्रोच में कन्वर्ट करें। हॉलिस्टिक अप्रोच जिसमें कि हम एक ऐसी इंसाइट लेकर चले 5 तत्वों पे आधारित जो 5 एलिमेंट्स बेस्ड एफर्ट हो और उन बच्चों के जीवन में उसके माध्यम से हम नर्चरिंग का कंसेप्ट सीखते हैं। फिर हमने ये भी देखा सर कि बच्चे को अगर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग अगर बनाना है तो सीड्स प्लांटेशंस का टाइम भी इम्प्लांट करना है। अगर उसके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग के सीड्स, तो अर्ली चाइल्डहुड से बेहतर और कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। तो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारा किया हुआ ये एफर्ट उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ह्यूमन बीइंग तो बनाएगा, बट उन वैक्यूम्स में कुछ और चीज़ें भी थी जहाँ उनका मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल जो डेवलपमेंट एक बैलेंस के साथ होना चाहिए, वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था। वो कहीं ना कहीं वैक्यूमाइज रह रहा था। और जब तक आप किसी हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ या 5 एलिमेंट्स की जो स्ट्रेंथ है जिसे पूरी दुनिया मानती है, साइंस मानता है, तो उसके साथ अगर हम उन्हें नर्चरिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट समाज को बदलने में और इन बच्चों के जीवन में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड नर्चरिंग हम ला सकते हैं। मैडम का बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रहा है डियर व्यूअर्स, क्योंकि 20 साल पहले के समाज में जो जॉइंट फैमिली थी और उसके बाद जब ये न्यूक्लियर फैमिली में कॉन्सेप्ट बदला तो बच्चों को जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव से निकालने के विचार शायद उसी ने आपको एक इंसाइट दिया कि आप एक ऐसे सेंटर की स्थापना करें जहाँ पर बच्चों को होलिस्टिकली। क्योंकि एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि जीवन उसी गति से चलता है लेकिन कब कहाँ वैक्यूम्स आ जाते हैं मदर्स के सामने में, जब वो खुद कैरियर ओरिएंटेड होती हैं तो खुद के करने के लिए भी आज के टाइम में बहुत कुछ है। तो बच्चा जो है, भले वो सिंगल चाइल्ड है आज के टाइम पे, पहले जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है, पर बच्चे की नर्चरिंग तो आप नेचर बेस्ड ही कर सकते हैं, पर अब अगर उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट की ज़रूरत होती है और मदर को चूँकि वो बहुत बिजी है, वो इस वक्त उतना समय नहीं दे सकती बच्चे, लेकिन वो चाहती है कि उसका बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जाए। तब हमने ये भी सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जो हर एक एस्पेक्ट को साथ में लेके जाए, जिससे मदर्स का अपना एक एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर में बच्चों में जो बीज बोए जाते हैं, जिस सीड की इम्प्लांटेशन होती है, उसकी कल्पना की जा रही है कि वो बच्चा एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट होकर के बाहर निकले और शायद एक स्वस्थ समाज के लिए इस प्रकार के बच्चों की आवश्यकता भी है।
बहुत ही उम्दा विचार के साथ एक स्प्रॉलिंग ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर हमारे समक्ष है डियर व्यूअर्स। और मैं समझता हूँ कि इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे निश्चित तौर पर एक आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बाहर निकलते हैं। इन बच्चों में एक अप्रत्याशित परिवर्तन देखा जाता है जो कि एक सामान्य प्री स्कूल में शायद देखने को नहीं मिलता हो। चले हम एक बड़ा सा सर एक मैं आपको और एक चीज क्लियर करना चाहूँगी कि प्री स्कूल जो है ना जी वो होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर का एक हिस्सा है। इट्स अ Right. पार्ट ऑफ होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर। राइट इट्स नॉट अ होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर। एग्जैक्टली राइटली सेड। प्री स्कूल में जो न्यूमेरेसी और लिटरेसी की प्रक्रियाएं होती हैं वो वहीं तक सीमित हो जाती है जहाँ की होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर में जी। बच्चों को बहुआयामी बहुत तरह के मल्टीफेरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके जी। डेवलप किया जाता जी। है। ये बहुत ही शानदार सा विचार और इसके साथ खड़ा हमारा लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर। मैडम एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी सामने खड़ा हुआ है क्योंकि लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर में बच्चे काफ़ी दिनों से विगत 7 वर्षों से शायद जी। पठन पाठन में लगे जी। हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट की पूरी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। यहाँ पर आपके एक्सपर्ट्स आपके साथ होते हैं और हमने जहाँ तक जानकारी ली है उस लिटिल विंग्स में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके आधार पर बच्चों की नर्चरिंग में कहीं पर कोई चूक हो ही नहीं सकती। जी। लेकिन अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया समाज में पैंडेमिक के बाद। बच्चे होली क्लासरूम के बजाय अपने घरों में कन्फाइन हो गए। पैंडेमिक की वजह से उनके ऊपर मेंटल फिजिकल सोशल सेटबैक्स आ गए। उन्हें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मिलने लग गई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी डेवलप कर गई। तो इन जी। तमाम चीज़ों में जो ये पैंडेमिक आया और जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा उसके लिए लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर में क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है और क्या कुछ करने की आपकी कल्पना है? जी ये शायद आपने मेरे मन की बात पूछ ली है। जी मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि हमने रिसर्च बेस्ड ही पूरा हमारा जो सेटअप प्लान किया होलिस्टिक का, तो हमने जब पैंडेमिक के इस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को तब देखा सोसाइटी में और हमें लगा कि क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, जी क्या असर डाल रहा है ये पैंडेमिक उनके ऊपर। हमने वहाँ भी अपने एक्सपर्ट्स को उनके इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड रिसर्च वर्क में लगाया। राइट मैंने खुद अपने आसपास मेरे घर के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स के घर में, रिलेटिव्स के यहाँ, हर जगह एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाना शुरू किया जी कि बच्चों का लाइफस्टाइल में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है या किस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर कि हमने वहाँ पर देखा कि मेंटल, इमोशनल एंड सोशली तीनों इन सब्जेक्ट्स के साथ बच्चे ब्रेक हो रहे थे। ओह जो हिडन था सर, Right. वो दिख नहीं रहा था। वेरी पेनफुल। क्योंकि आप कंपेयर करिए प्री कोविड सिचुएशंस को, जी जी वो बच्चे स्कूल जाते थे, खेलते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते थे, उनका एक रूटीन होता था, तो घर के साथ उनकी रूटीन बैलेंस हो जाती थी। राइट ऑल ऑफ सडन वो वन साइड आ गए, मीन्स कि सिर्फ घर के अंदर रहना है, फैमिली में रहना है। राइट एडल्ट्स जो भी होते हैं सर, उन्होंने पैंडेमिक के सीरियसनेस को समझा, लेकिन बच्चे उससे डर गए। बच्चों में इसने एक फियर साइकोसिस जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्हें सही, बिल्कुल सही। मास्क से, सैनिटाइजर से दूर रहना है, बाहर नहीं जाना है, हजारों तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो उनके लिए बिल्कुल नए थे। बिल्कुल हमें लगा कि ये बच्चे किससे सवाल करें और इतने डरावने जवाब हैं उनके। जी। अगर हमें उन्हें जवाब देना पड़े तो वो जवाब भी शायद उन बच्चों के लिए बहुत डरावने होंगे। जी देन हमारे रिसर्च पे हमने ये देखा कि पैंडेमिक से थोड़ा जब सिचुएशंस कंफर्ट लेवल की तरफ आने लगा तो हमें लगा कि एक ब्रिज कोर्सेज की ज़रूरत है ऐसे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जी अकॉर्डिंग टू मेंटल, फिजिकल, इमोशनली जहाँ वो वीक हुए हैं, राइट और किस तरह से हम उनके लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को वापस लेके आए जी बहुत सहजता के साथ, जी न कि ये बताते हुए कि आप कहाँ पे वीक हो। राइट हमें समझना है कि वो कहाँ पे वीक है। जी और फिर सर हमने उसके लिए कई एक प्रोग्राम्स भी शुरू किए लिटिल विंग्स में, जैसे कि टाइनी टोज है, साउंड, हमारा जो सेंट प्ले एरिया है उसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया कि पैंडेमिक के इफेक्ट्स से इन बच्चों को कैसे बाहर लाएं। हमने रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू उनके नर्वस सिस्टम्स को भी किस तरह से हम धीरे धीरे बहुत सहजता के साथ स्टिमुलेटेड कर पाएँ। हमने उन बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, ऐसी स्टोरीज की बहुत चेयरफुल
बहुत हैप्पीनेस उनको फील करवाए जी और पूरे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए 5 बच्चों के ग्रुप में जी हमने फिजिकली इस तरह के ब्रिजेस कोर्सेज शुरू किए। राइट और यहाँ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि क्यों ज़रूरी है ऐसा, क्या है। कई पेरेंट्स सर हमने एक इस पे क्वेश्चनर तैयार किया राइट और हमने 2000 से लेके 2500 के करीब पेरेंट्स को इससे जोड़ा और उनके फीडबैक कलेक्ट किए कि क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ है। राइट एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर किसी के पास कहीं न कहीं कोई न कोई उसका इफेक्ट था बताने के लिए। राइट फियर साइकोसिस तो ठीक है, एक सब्जेक्ट है जो कॉमन है, हम सब समझ सकते हैं। सर जब तब हमें लगा कि अगर आप इस स्टेज से बच्चों को डायरेक्ट स्ट्रीम लाइन में लाते हैं तो उनके लिए कुछ वीकनेसेस ऐसी होगी जो जिंदगी भर के लिए रह जाएगी। राइट जैसे कि अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट्स में फ्रैक्चर हो जाता है जी और प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर लगाने के बाद एक सर्टेन टाइम पे जब प्लास्टर रिमूव होता है सर, तो हमें वो बॉडी पार्ट्स बड़ा वीक फील होता है एग्जैक्टली और वहाँ पे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपिस्ट, राइट एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट को हम बुलाते हैं, फिजियोथेरेपी के सेशंस करते हैं जी और फिर हम उस बॉडी पार्ट को वापस स्ट्रेंथ करके स्ट्रेंथफुल बना के और अपनी रूटीन में एज इट इज फ्रैक्चर के पहले की तरह काम करने लगते हैं। बिल्कुल तो सही। सर ये जो फिजियोथेरेपी का जो सेशन है ना, जी मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद राइट सभी पेरेंट्स, इवन एजुकेशनिस्ट और मैं एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 to 7 इयर्स के बच्चों के मन स्थिति को समझे। मुझे बोलते हुए भी मैं बहुत इमोशनली फील करती हूँ राइट क्योंकि आप बता नहीं पाते हैं एग्जैक्टली वो बच्चे छोटे बता तो नहीं कौन पाते। कैसे समझेगा। समझना जरूरी है हमारे लिए। और ये बहुत ज़रूरी है सर जी कि हम इस तरह के ब्रिज कोर्सेज हर जगह करें राइट और 2 से 3 महीने उन्हें रेगुलर रूटीन में लाने से पहले जी कंफर्ट करें। ये आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग है मैडम, और मैं तो समझता हूँ कि इतना सटीक उदाहरण डियर व्यूअर्स, डियर पेरेंट्स, कि अगर कहीं फ्रैक्चर हो बदन में तो उसे फिर से रीस्टेट करने के लिए हमें फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत पड़ती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहने का तात्पर्य है कि ब्रिज कोर्सेज की जो उत्पत्ति हुई वो सिर्फ इसीलिए हुई कि जो बच्चे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली ब्रेकअप्स थे जिनके साथ, जिस प्रकार से उन्होंने इतने परिवर्तन लाए, उन परिवर्तनों से उन्हें बाहर लाना है और फिर से रिस्टोर करना है। तो इसके लिए आपने अभी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे किया? ये चीज़ें तो आपने उत्पन्न कर दी। सर इसके लिए कई एफर्ट्स डाले हमने जी टीचर्स ट्रेनिंग किया हमने सबसे पहले राइट क्योंकि टीचर्स को एक्सपर्टीज देनी पड़ती है Yes. इस तरह के ब्रिजेस कोर्स करवाने के लिए। राइट नेशनल इंटरनेशनल ECCE एक्सपर्ट्स, उनसे हम कनेक्ट हुए ओके और उनके भी व्यूज़ और उनके सजेशंस को हमने लिटिल विंग्स से जोड़ा। राइट कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने सारे नॉर्म्स रेगुलेशंस को फॉलो किया राइट और बाकी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे हमने कोर्सेज तैयार किए। जी तो ये सारे एफर्ट जो है वो इन बच्चों के ही ओवरऑल इस पेंडेमिक के साइड इफेक्ट से बाहर लाने के लिए। राइट ग्लोबल और सर एस्पेक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग जी which was also made the engaging intertrend वेरी गुड वेरी intertrend गुड। आई मीन इट वाज ऑल जी, सर। एंगेजिंग एंड तो एंटरटेनिंग। ऑनलाइन जो हमारा सेशंस होता था वो भी completely जी focused and based on these kind of problems। राइट एब्सोल्युटली करेक्ट। डियर व्यूअर्स, जब बच्चे हमारे ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े तो एक काल ऐसा भी आया कि वो उनसे काफ़ी ऊब से गए थे। लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर पर उस ऑनलाइन क्लासेस को एब्सोल्युटली एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाया गया so that children should be attached with it and they should continue with their global perspective of learning। मैं समझता हूँ जो आपने बाहर की दुनिया से लोगों से संपर्क किया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप एजुकेटर से जुड़ी, इसका एक ही अभिप्राय रहा कि हम ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स में ये देखने की कोशिश करें कि क्या बच्चे उसी मनस्थिति में बाहर भी हैं और उसके लिए वही प्रयास किया जा रहा है। तो शायद हमने यही पाया कि वहाँ जो प्रयास किए जा रहे हैं वही प्रयास लिटिल विंग्स होलिस्टिक चल रहे हैं। तो व्यूअर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स तक की जो इंसाइट होती है, मैडम उषा अग्रवाल
लेकर आती है सामने, और तभी बच्चे हमारे ग्लोबल एस्पेक्ट्स में लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्ड सेंटर में काफ़ी सुरक्षित पाए जाते हैं। बहुत ही जिज्ञासा आपने उत्पन्न कर दिया है मैडम मेरे मन में, क्योंकि आपने जो जवाब दिया है और उस जवाब से जितने टू द पॉइंट स्पेसिफिक वैल्यूज। सर ये जवाब नहीं है, ये एक बहुत सच्चा एफर्ट है। जी। मैं नहीं जानती कि आने वाले समय में मैं सब कुछ बदल पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जी, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस 1 to 7 years के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए उन्हें बहुत सीरियस होकर के हर एक एंगल से सोचना जरूरी है। डियर व्यूअर्स, आप सबों के लिए बहुत बड़ा इंसाइट है और एक बड़ी स्टेटमेंट है मैडम उषा अग्रवाल की तरफ से। प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड हु इज देयर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 7, because this is the right time for them to groom, to nurture and to save them from the permanent damage that's likely to take place. Well, मैम, इसमें मैंने आपसे कहा पहले कि एक जिज्ञासा मेरे अंदर और भी बड़ी हो गई। मैंने जहाँ तक जानकारी हासिल की है रेजिडेंस होस्टिक चाइल्ड सेंटर की, स्प्रॉलिंग 25,000 स्क्वायर फीट पर आपने इसको एक्सपेंड किया। जी सर। और उसमें एक कॉन्सेप्ट डाला होलिस्टिक। जी। तो होलिस्टिक से आपका क्या अभिप्राय है और इतने बड़े कैंपस की क्या आवश्यकता है? किसी प्री स्कूल के लिए इतने बड़े कैंपस की क्या आवश्यकता है? आपको पता है कितना है हमारे स्क्वायर? मैं जहाँ तक अनुमान लगाता हूँ 25 से 30,000 स्क्वायर फीट में है। जी 30,000 स्क्वायर। जी। जगह बड़ी है या छोटी है वो मैं नहीं मानती हूँ कि नर्चरिंग में इफेक्ट डाल सकती। आप 50,000 स्क्वायर जी। लेकिन उसके साथ आपका अप्रोच क्या है? जी। हॉलिस्टिक शब्द जो आपने पूछा जी। सर, हॉलिस्टिक इन डेप्थ मीनिंग जो है जी। वो इतना ज़्यादा अपने आप में बड़ा है और लार्ज है कि एक जीवन कम पड़ जाएगी जब आप हॉलिस्टिक को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन 1 to 6 years के लिए जी। हॉलिस्टिक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं जी। बोलना बहुत आसान है और लिख देना भी बहुत आसान है। राइट। लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्ड केयर सेंटर। राइट। प्रूफ करना बहुत मुश्किल है और प्रूफ करके उन बच्चों के जीवन में वो परिवर्तन लाना जिसे हम सामने जब देखने लगे हैं और हम हमारे एक्सपर्ट जैसे हमारे यहाँ हमारे एकेडमिक हेड हैं जैसे रोनिटा डिसूजा टीचर सबके बारे में मैं मानती हूँ कि हम अपनी पूरी जान लगा के यहाँ कोशिश करते हैं। इट्स वेरी इजी टू टीच अ चाइल्ड बट इट्स वेरी टफ टू नर्चर। वो वेरी इफेक्टिव सेंटेंस था सर, हॉलिस्टिक जब जोड़ता है तो नर्चरिंग जोड़ता है जी। क्योंकि आप पढ़ाने नहीं जा रहे हैं सर, आप बच्चे को नर्चर करने जा रहे हैं और नर्चरिंग के लिए आपको फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल बैलेंस डेवलप करना पड़ता है। वेरी राइट। ये तीनों चीजों में जब तक आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप होलिस्टिक को प्रूव नहीं कर सकते। हेड हैंड एंड हार्ट की बात आप कर रही हैं अभी आप। बच्चे में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है जी। उन्हें कैसे आप बाहर लाएंगे? जी। उनके पोटेंशियल को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे जी। जो इन्हें इन बॉर्न गॉड से गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। बिल्कुल सही। हर किसी के पास कुछ एक्सपर्टीज होती है बट अगर उसको 1 to 6 और 7 years के बीच में समझा जाए नर्चरिंग के माध्यम से होलिस्टिक अप्रोच के साथ जी। क्योंकि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप बुक्स लेके बैठते हैं सर और आप देखते हैं कि बच्चा कितना कुछ बोल पाता है, लेकिन जब आप नर्चर करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चा कितना कुछ कर पाता है। एग्जैक्ट। सो बोल पाना और कर पाना ये दो बहुत बड़ा अंतर रखते हैं शब्द सर। तीसरा मुझे लगता है कि इमोशनल सोशल जो वैल्यूज होती हैं जी। वो भी बहुत स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए। सेल्फ लर्निंग होती है सर बच्चे की। जी। और मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। वो बहुत ही मेरे जितने भी सुनने वाले अभी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सर मदर मिल्क माँ का दूध जी। हम कहते हैं कि बचपन में माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, अमृत के समान है, क्योंकि वो मदर मिल्क जो है उसकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो बच्चा तमाम उम्र किसी भी बीमारी और किसी भी डिजीज के सामने में फाइट कर सकता है क्योंकि उसने अपनी माँ का दूध पिया होता है। और साइंस भी मानता है,
मेडिकल साइंस भी मानता है, हम सब अपने पौराणिक कथाओं में भी जाएं तो हम मानते हैं, सिर्फ वही अप्रोच होती है होलिस्टिक बेस नर्चरिंग की एक ह्यूमन बीइंग के आने वाले लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आने वाले होते हैं, उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग बन जाता है जब वो पंच तत्वों से जुड़ता है बचपन में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी समय मदर मिल्क मिले तो वो आगे काम करता है ना सर जी। वैसे ही 1 to 7 years में ही अगर आपको नर्चरिंग मिल रही है राइट होलिस्टिक चाइल्ड केयर सेंटर में, राइट देन वो जो नर्चरिंग है वो स्ट्रेंथ आपको उसके आने वाले जीवन में दिखेगी जब वो बच्चा बड़ा होगा। बिल्कुल सही। और उस वक्त पेरेंट्स याद करेंगे हमें भी और कहीं और भी सारी, मैं तो मानती हूँ कि इंडिया के हर एक प्री स्कूल से जुड़े हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से होलिस्टिक बेस्ड नर्चरिंग का एक कंसेप्ट ही ले लें इन बच्चों के लिए, जी और हमारे आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है जी। वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बन सकता है। It's such a beautiful metaphorical expression when madam says that माँ का दूध अमृत होता है और इससे ही बच्चे नर्चर्ड होकर के आगे स्ट्रेंथफुल बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि होलिस्टिक नर्चरिंग करके हम बच्चों को योग्य बना सकते हैं। This is such a beautiful metaphor. Once again, I emphasize upon this statement, dear viewers, क्योंकि इतना अच्छा उदाहरण हमें देखने को कहीं और मिलता नहीं है। मैडम ये बड़ी बात है, लेकिन इस होलिस्टिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए होंगे आपने अपने होलिस्टिक सेंटर, तो वो कौन सा एफर्ट है जिसके बारे में थोड़ी आप चर्चा करें, व्यूअर्स को बताएं व्हाट ऑल एफर्ट्स यू हैव मेड फॉर दैट पर्पस। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी सर कि एफर्ट के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। जी। एक सच्ची ईमानदार कोशिश सबसे पहले, यस यस एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर राइट जहाँ हम एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स बेस्ड एक्टिविटीज उनको राइट बहुत सही रूप में करवा पाएं, एक्सपर्ट्स टीचर्स, ट्रेन्ड टीचर्स जिन्हें इसी सब्जेक्ट से जुड़ करके ट्रेनिंग दी जाती है। जी देन सर इंक्लूसिव लर्निंग, राइट, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। प्लस बहुत कुछ ऑनगोइंग एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें भी हम वहाँ कनेक्ट करते हैं, और बहुत सारे आई थिंक एफर्ट्स के लिए वर्बली बहुत थोड़ा होगा कि होलिस्टिक शब्द के लिए जैसे हमने वहाँ पे पैम्परिंग स्पा किया शुरू। राइट सर पैम्परिंग स्पा सुनने में लगता है कि मसाज है जी जी या कोई सलून है राइट या उनके मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहे होंगे, एग्जैक्टली। लेकिन हमारा उसके पीछे रिसर्च था कि अगर आप एक पैम्परिंग स्पा के थ्रू बच्चे को हेल्थ एंड हाइजीन के जो हिडन वैल्यूज हैं वो बताएं वो हमें उन्हें बताना, क्या। जिससे कि माँ को कहना नहीं पड़े कि हैंड वॉश करो, अब तो खैर कोरोना ने सबको सिखा दिया है, वरना राइट हैंड वॉश के लिए भी बहुत बार बोलना पड़ता था Exactly. बच्चों को। हम सब भी सर यूज टू नहीं थे। लेकिन ये 7 वर्षों से ये प्रयास चल जी रहा है सर, मैनेजमेंट जी सोसाइटी सर। अपने शूज में अपनी जगह खोलना है, Right. मॉइस्चराइजर क्यों लगाना है, Right. हैंड वॉश करके आपको हैंड क्रीम क्यों लगानी है, जी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होलिस्टिक अप्रोचेस रखती हैं सर। Right. हमने ट्री हाउस बनाया है राइट सर। ट्री हाउस एक दिखाने के लिए नहीं होता है, जी ट्री हाउस के यूजेस क्या है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करें। आप गैजेट्स और टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपके पास बुक्स को छूने का टाइम नहीं है। अब हम देखते हैं सर रीडिंग हैबिट्स, माने कि एक बहुत कहानी और कथाओं में आएगा थोड़ी देर बाद में कि मैं भी कभी किताब पढ़ता था। तो उस हमें लगता है सर कि इस उम्र के बच्चों को अगर हमें रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ सिखाना है तो उसका अप्रोच एफर्ट डालना पड़ेगा। तो हमने ट्री हाउस बनाया जहाँ हम सिंगिंग के साथ बच्चों को गार्डन में लेके जाते हैं, ट्री हाउस में बैठाते हैं, वहाँ हमारे टीचर एक्सपर्ट्स उनको स्टोरी सुनाते हैं, फिर 1 by 1 को 1 पेजेस ऑफ बुक रीडिंग करते हैं। तो नेचर के साथ जब वो कनेक्ट होकर बुक पढ़ते हैं सर, तो नो डाउट धीरे धीरे उनमें वो हैबिट भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में डेवलप हो जाएगी। तो ये भी एक होलिस्टिक अप्रोच का ही ऐसे बहुत सारे यूएसपी पॉइंट हैं जहाँ हम डे टू डे बच्चों के साथ काम करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इस डिस्कशन से बाहर आया मैडम, और आपने उस पर बहुत अच्छी एम्फेसिस भी डाली है। आपने कहा कि आउटकम ओरिएंटेड सर हाईली प्रोफिशिएंट जो ट्रेन टीचर्स होते हैं जी, उनको आप आई थिंक वो इसका स्पाइनल कॉर्ड है, वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन चीज़ों को, जो चीज़ों को आपने यूएसपी के तौर पर अपने जी। इस प्रांगण में इस्टेब्लिश किया है और आपको मैं बताऊं कि हमने पूरा करिकुलम ही 5 एलिमेंट्स बेस बना, बेस किया है। हमारा अपना करिकुलम है। राइट
हमने कोई कॉपी पेस्ट करके या किसी भी वेल नोन करिकुलम को फॉलो नहीं किया है सर। Exactly. हमने रूट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, टीचर्स ट्रेनिंग से लेके, अपना खुद का करिकुलम से लेके हर चीज इम्प्लीमेंट की है जी। इन बच्चों के जीवन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट लाने। इससे एक और इंसाइट मुझे मिल गया और शायद प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा और जी, मैडम सर। प्रश्नों के उत्तर देकर बहुत सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने का कोशिश भी हम करेंगे। और सर 2-3 चीज़ें आपको मैं बताना और चाहूँगी जी। कि हमारे यहाँ पर जैसे कि इवैल्यूएशन सिस्टम्स जो होता है वो थ्रू आउट एकेडमिक रिपोर्ट्स पे होता है। राइट। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है जी। उसका भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है Very डिफरेंट अलग तरह से। Very good. हेल्थ रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं जी। कि बच्चे के हेल्थ से और फिजिकल जो गोल की जो है हमारी उस पर भी हम एनालिसिस वॉच करते हैं। राइट। देन विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, तो वो सब उनके हॉबीज को जनरेट करने के लिए हम करते हैं। Right. बहुत कुछ है, तो बहुत सारे करता है। व्यूअर्स, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ मैडम से बात करके कि ये जो मॉन्टेसरी थ्योरी है, पियाजेट्स थ्योरी है या हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, उसका एक बहुत ही सुंदर सा प्रारूप लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर पर प्रयोग में लाया जाता है और उस प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए काफ़ी अच्छी ग्रोथ की कहानी उनकी लिखी जाती है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट, एंड इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इससे एक और इंसाइट मेरे दिमाग में आया है और प्रश्नों का सिलसिला जी। जारी रहे, इसलिए फिर मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा। ये जो पंचतत्व की आपने बात की, तो थोड़ी सी आप राइट डालिए, पंचतत्व है क्या, जिस बारे में बहुत एम्फेटिकली आप हमेशा बोलती हैं और अपने लिटिल विंग्स को पंचतत्व पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दे रखा है। तो इस पंचतत्व का महत्व क्या है और इन पंचतत्वों में प्रकृति का क्या अभिप्राय है? प्रकृति की गोद में इतना सुंदर स्क्रॉलिंग एनवायरनमेंट में किसी प्री स्कूल का एस्टैब्लिश होना जो चाइल्डहुड होलिस्टिक चाइल्डहुड सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर पंचतत्व क्या है और प्रकृति का होना क्यों आवश्यक है? ये दोनों ही चीज़ें हमारे प्रश्न के तौर पर आपके समझ जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़रूरी एक ऐसा सवाल है। जहाँ तक मेरी समझ है सर, पंचतत्वों से ही हमारा पूरा ये जो बॉडी है ना वो बनता है। राइट पहली बात, जी। जब हमारा अपना ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर ही पंचतत्वों पे आधारित है और अगर जिस चीज़ से जो शरीर बना है, जो दिमाग बना है, जी। जो ताकत बनी है, अगर उसे उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जोड़ा जाए तो वो ताकत बढ़ेगी या घटेगी सर, आप बताइए। बहुत खूब, बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी ना? बिल्कुल। तो पहला हमारा रिसर्च है कि 5 एलिमेंट्स बेस्ड बैलेंस्ड। जी। यहाँ सर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। राइट। कि और वो हम करिकुलम के अकॉर्डिंग करते हैं कि हर एक एलिमेंट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को हम बैलेंस फॉर्म में बच्चों के पास लेके जाते जी। हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तभी भी नुकसान करती है बिल्कुल। और अगर कम हो जाए तो डेफिशिएंसीज बनाती है। दूसरा, पंचतत्व एक ऐसा एलिमेंट, पंचतत्व एक ऐसा सोर्सेज है, जी। एनर्जी, जी। स्ट्रेंथ, जी। पावर, जी। स्पिरिचुअलिटी, जी। आप सब कुछ इनसे ले सकते हैं राइट। विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा। क्षितिजल पावर गगन समीरा से Yes. सब कुछ लिया जा सकता है। अब ये है कि हमने गैजेट्स, लग्जरी, सिस्टम और नहीं जाने कितनी सारी चीज़ों से अपने बच्चों को कंप्लीट एक लग्जूरियस लाइफ दे दी, राइट। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि वो जो नेचर है, जिस नेचर के पास जाने के लिए हम वंस इन ईयर भी कहते हैं कि हमें हिल स्टेशन पे घूमने जाना है, क्यों आपको हिल स्टेशन पे जाना है? क्यों आप पहाड़ों में जाके खुश हो जाते हैं? क्यों नदी को देख के आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है? राइट। क्यों सनलाइट में जाके आपको विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? आपके कई बीमारियां, कई डिजीज चले जाते हैं। तो सर 1 to 7 ईयर्स जो स्पेशली ये बच्चे हैं, अगर यहाँ इन्हें बैलेंस फॉर्म में पंच तत्वों से जुड़ी हुई नर्चरिंग मिलेगी तो आप कल्पना कीजिए कि उनका आने वाला जो भविष्य होगा वहाँ कितने स्ट्रेंथफुल होंगे। बिल्कुल सही। तो पंच तत्वों का इम्पोर्टेंस तो सर बयान ही नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन उसे हर किसी को ये समझना होगा कि बिना जोड़े बगैर आप बच्चे को संपूर्णतः क्या कहते हैं उसको, कि संपूर्ण रूप से आप उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बना रहे, कहीं ना कहीं कोई अधूरापन छोड़ रहे हैं उसके अंदर। आपका एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट अम्बा जी में है मैडम, जहाँ पर बच्चे आपने अडॉप्ट किए हैं और उन बच्चों को आपने हमेशा प्रकृति से जोड़ने की बात की है। जी। तो मतलब वहाँ से क्या आपको इंस्पिरेशन मिलता है? व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजंस कैन यू प्रेजेंट? आपको आज के बच्चे जो हमारे लग्जरी में रह रहे हैं, जी। बजट से जुड़े हुए हैं, जी। और वो बच्चे जो पहाड़ों पर रह रहे हैं,
उनमें क्या फ़र्क आपने देखा और क्या मतलब किस प्रकार की भाव आपके अंदर आते हैं? सर आपको आपने अम्बा जी का नाम लिया है तो पहले मैं सबको जय अम्बे बोलूँ। जय जी। अम्बा जी एक ऐसा क्षेत्र है सर जहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं, जी लेकिन मैंने पाया वहाँ के बच्चों को, जहाँ पे मैं 100 से करीब बच्चे ऐसे हैं जो मेरे अपने अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, और पिछले 12-13 साल में मैंने देखा सर, टचवुड करके बोलूँगी कि वो बीमार ही नहीं होते सर, उन्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ से मेडिकल टीम लेके जाती हूँ वहाँ डॉक्टर्स की, पर वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं सर। आप उन्हें स्पोर्ट्स में देखिए, वो केसू के फूलों के पेड़ों पे 40 फीट में तो मिनटों में चढ़ जाते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि ये 5 एलिमेंट्स ही है सर, राइट, जो उन्हें इतना स्ट्रेंथफुल बनाते हैं। बिल्कुल। और हमारे बच्चे, मेरे खुद के घर में, मैं अपने आसपास देखती हूँ, जी डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से बाहर नहीं आते पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा बीमार नहीं है, आपका बच्चा सिक नहीं है, वो बेटर वे में अपना स्टडी कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, जीवन में कुछ अच्छे गोल अचीव कर पाएगा। कितना भी तेज दिमाग हो सर, पहली जरूरत हेल्दी बॉडी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अम्बा जी के बच्चों के साथ साथ एक और उदाहरण दूंगी, जी ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल। राइट, मैं सभी पेरेंट्स से और सभी अपने जुड़ने वालों को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वहाँ जाके विजिट जरूर करें, किस तरह सराउंडिंग द नेचर है वो स्कूल। राइट, हमारे बच्चे वहाँ पर भी मैंने देखा कि एकेडमिक के साथ साथ ओवरऑल फिटनेस में अनबिलीवेबल उनका स्ट्रेंथ बनता है सर, प्रकृति के बीच बिकॉज ऑफ नेचर। राइट, नेचुरल एलिमेंट्स जी को सर। काफी मिलता है, जी ये बहुत बड़ी बात होती है। दैट्स वंडरफुल मैन। मैं समझता हूँ कि हेल्दी बॉडी ऑलवेज बेयर्स हेल्दी माइंड, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और 5 बेस्ड एलिमेंट्स सर, पर हेल्दी आपने, सोसाइटी, हाँ हेल्दी नेशन, राइट, इसकी बट कल्पना है। शुरुआत होती है हेल्दी चाइल्ड से। राइट, राइट। सो एक इकाई को मजबूत कर लें जी सर। तो समाज और राष्ट्र भी निर्मित हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। सुंदरता से। जी सर। मैम, अब मैं समझता हूँ कि जाते आते आपका बहुत ही वैल्यूबल टाइम आज हमने लिया है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। जाते जाते आप एक आज सवाल- मैं हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सोचिएगा कि आपको अपना बच्चा जी एक रोबोटिक चाइल्ड के रूप में चाहिए, या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, विजनरी, हेल्दी, स्ट्रेंथफुल बच्चा जो आपका अपने लाइफ में हर मकाम पे सक्सेस हो, ऐसा बच्चा चाहिए। आपका निर्णय, आपका डिसीजन, आपकी सोच। Dear viewers, this is a Herculean question from Usha Agarwal Madam today for all of you to start pondering whether you wanted a robotic child in your life or Yes. you wanted a child to be holistically groomed, visionary, result oriented, healthy child to produce a healthy society and healthy nation altogether. जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ अगले शनिवार के लिए हम फिर से तैयार होंगे इस एक प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट पर। और है जी कि जिन्हें एक्चुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है तो वो एक बार लिटिल विंग्स होलिस्टिक चाइल्ड केयर सेंटर की विजिट जरूर करें, जी क्योंकि बगैर देखे, बगैर समझे शायद आप शब्दों से हमें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे एफर्ट्स को, हमारे अप्रोच को देखेंगे और उसके जुड़े हुए अपने सजेशंस हमें देंगे। Thank you so much. It's very important for all of us to just start thinking about it. If you really wanted a safe and a sound environment for your child, post-pandemic, probably the only way to head on towards Little Wings Holistic Childhood Center. Thank you so much for getting Thank you, sir. together. Thank you नमस्ते so मैम, much. आपके आने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। और मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ों को Thanks, फिर sir. से अगले शनिवार में लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।